Good morning, viewers. Hello and welcome to the Morning News Show, where we bring you the latest headlines and insightful stories to kickstart your day. I'm Queena Sharma and you are watching CNN News 18. First up, on top of this bulletin, we're tracking some breaking inputs coming in from Punjab and Uttar Pradesh together, where three pro-K terrorists of the Khalistani Zindabad force were actually killed in Pilibhit during a joint operation conducted by Punjab and Uttar Pradesh's police. Now, the encounter broke out after criminals threw grenades and bombs at a police station in Gurdaspur in Punjab. Now, the encounter took place in Puranpur, Pilibhit, between a joint team of Uttar Pradesh police and Punjab police. Two AK-47 rifles, two Glock pistols and a large quantity of ammunition was actually recovered during the encounter. Three criminals, Gurvinder Singh, Virendra Singh alias Ravi, and Jaspreet Singh, also known as Pratap Singh, all residents of Gurdaspur, were actually taken down. These are the latest inputs that we are tracking from the ground, from Pilibhit, where the Khalistani Zinda force terrorists had earlier attacked a police station in Gurdaspur earlier this month in Punjab using grenades and bombs, triggering a massive manhunt for all the accused in this entire case. The encounter with the joint team of Punjab and UP police in Pilibhit led to the elimination of the three wanted criminals and recovery of a heavy weaponry. Well, these are the latest inputs that we are tracking from the ground, where now in a joint operation with Punjab police, UP police has been able to bust and get hold of the three accused in this entire case. The encounter actually broke out after the criminals threw grenades and bombs at a police station in Gurdaspur in Punjab earlier this month. Now, this counts for the 8th incident of such terror act in Punjab in the last 30 days. The encounter took place in Puranpur, Pilibhit, in the area of Uttar Pradesh, between a joint team of Uttar Pradesh police and Punjab police. Now, two AK-47 rifles, two Glock pistols and a large quantity of ammunition was actually recovered during the encounter. Three main accused Gurvinder Singh, Virendra Singh and Jaspreet Singh, also known as Pratap Singh, all residents of Gurdaspur, were actually taken down in this entire encounter situation. Now, joining us on the broadcast is our colleague from News 18, Parvez. नमस्कार परवेज जी। पंजाब पुलिस के पास ऐसे कौन से पुख्ता सबूत थे जिसके कारणवश इन सारे क्रिमिनल्स को उत्तर प्रदेश तक ट्रैक डाउन करके इनका इनकाउंटर पीलीभीत में किया गया? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पंजाब के गुरदासपुर पुलिस चौकी पर ग्रेनेड फेंकने की बात आई थी, जिनमें इन तीन आतंकवादियों के नाम थे, जिसमें गुरदासपुर के रहने वाले गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह और जसप्रीत सिंह थे। इनकी लोकेशन लगातार पीलीभीत मिली थी, जिसको लेकर पंजाब पुलिस मौके पर पहुंचती है और इनके साथ लोकल पुलिस, यहाँ की एसपी समेत जो यहाँ की स्थानीय पुलिस एसओजी होती है, उसके साथ मुठभेड़ होती है, जिसमें ये तीनों आतंकवादी मारे जाते हैं। फिलहाल इनके पास से AK-47 और दो पिस्टलें बरामद की गई हैं। जी परवेज जी, हमको एक बात बताइए, इन आतंकियों के पास से जो भी हथियार और गोला बारूद मिले हैं, इससे क्या संकेत मिलता है और यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस आने वाले टाइम में इन सब चीज़ों से क्या कार्रवाई आगे बढ़ाएगी? देखिए, हम आपको पिछले दशक में ले जाते हैं, जब आतंकवाद चरम सीमा पर था, जो तराई का इलाका आतंकवाद से ग्रसित था, उसमें पीलीभीत का भी जिला ये था। लगातार आतंकी गतिविधियां, चाहे अमृतपाल हो, उसकी भी यह लोकेशन मिली थी। अमृतपाल जिस गाड़ी में चल रहे थे वो भी पीलीभीत की थी। अमृतपाल का जो ड्राइवर था वो भी पीलीभीत का था। यानी कि इन आतंकी घटनाओं में लगातार पीलीभीत सुर्खियों में बना रह रहा था और यहाँ पर पीलीभीत में इनकी लोकेशन लगातार मिलती जा रही थी। जी परवेज जी, मैं आपसे चाहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पहले तो हम तक ये जानकारी लाने के लिए, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू स्टे विद अस ऑन द ब्रॉडकास्ट एज वी आर गेटिंग बिशंबर बिट्टू फ्रॉम गुरदासपुर हु इज जॉइनिंग अस फ्रॉम ग्राउंड फॉर ऑल द बेसिक डिटेल्स। बिशंबर जी नमस्कार। मैं जानना चाहती हूँ, गुरदासपुर पुलिस स्टेशन के हमले के बाद इस ऑपरेशन को कितना इम्पैक्टफुल और कितना रेलिवेंस दिया गया था पंजाब पुलिस द्वारा, और ऐसे कौन से एविडेंस थे कि पंजाब पुलिस यूपी तक चली गई है इन लोगों को ट्रैक डाउन करने के लिए?
जी जी बिल्कुल, ये जो गुरदासपुर के 3 पुलिस स्टेशनों में जो अटैक हुए थे, जिनमें से एक मुंडाला बांगरा पुलिस स्टेशन है, जिसके ऊपर 13 दिसंबर को अटैक हुआ था। उसके बाद 18 दिसंबर को जो बख्शीवाल पुलिस चौकी पर अटैक हुआ था। उसके बाद 20 दिसंबर को एक मुंडाला बांगरा पुलिस चौकी पर अटैक किए गए थे। इनमें से जो 3 लोग थे, जो आज जो बेरीबीत में पुलिस एनकाउंटर में जो ढेर हुए हैं, वो भी तीनों लड़के गुरदासपुर के इसी इलाके के रहने वाले, कलाम और डेरा बाबा नानक के लड़के में जो बॉर्डर इलाका पड़ता, उसी एरिया के रहने वाले हैं। और इस चीज को लेकर काफी लोगों में दहशत थी, लोग इस चीज में दहशत के शाये में थे। लोगों में ये इसका डर था भी यार ये कौन लोग हैं जो पुलिस स्टेशनों पर अटैक कर रहे हैं। लोग आम लोग कैसे इसको लेकर मतलब सुरक्षित रह सकते हैं अगर पुलिस स्टेशनों पर भी हमले हो रहेंगे। इसी को लेकर पंजाब पुलिस भी जो पुलिस स्टेशनों के जो दीवारें थी उनको दीवारों को बड़ा करनी थी, उसकी सिक्योरिटी बढ़ा रही थी और लोगों में दहशत पाई थी यारी। और इन चीजों को लेकर पुलिस भी काफी मुस्तैद थी और काफी लग रखी ना। आज जो इनकाउंटर हुआ पीलीभीत में पुलिस और पंजाब पुलिस और पीलीभीत पुलिस ने यूपी में किया, उसको लेकर भी लोगों में जो चाह थी अगर ये खुद जिम्मेदारी खुद ले रही है। और तीनों लड़के मारे गए हैं जो कलानौर पुलिस स्टेशन के आसपास के रहने वाले, डेरा बाबा नानक के एरिया के रहने वाले हैं। और आज ये एनकाउंटर की खबर आई है, उनके बाद पुलिस को भी सुखी सांस मिली है, सुखी की ये जो एनकाउंटर हो चुका। और जो हो सकता है जो 3 पुलिस स्टेशनों पर हमले हुए थे, इनके ऊपर आप आगे ऐसी कोई घटना ना घटे। जी जी विशंबर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे तक ये जानकारी लाने के लिए। वेल, I'd like to thank Parvez and Vishambhar both who were joining us from UP and Punjab